मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। Good evening to one and all who are present here with me and who are watching us. A very, very, very happy Diwali to everyone. On this occasion of Diwali, let's start with what Diwali means to us. For me, Diwali is lights, diye, roshni, happiness, togetherness, sharing, caring, and lots of positivity all around. Let negativity die away. Let all the diseases, all the bad vibes, everything that we don't want be out. That's Diwali for me. But since the time that I was a little child, there were so many questions. Why is Diwali celebrated? Well, I'm sure all of us used to learn why is it celebrated and like a parrot go and recite it in front of the teachers. But what is this? What is that? Why is Dhanteras celebrated? Why do we do XYZ? Why do we do this? Oh my God, so many whys and whats I could never answer. I'm sure here with me, the children who are present, Paneet, Damya, Arjun, and I'll do this, I'll introduce everyone later. So all of us present here have so many questions that we decided to do this event to do away with our whys and whats. So here we are, people, with the event known as Reasoning Diwali Beliefs. So welcome everyone. And our questions are going to be answered by two beautiful panelists or guests here. We have Ms. Aparna Sahai. Welcome, Aparna, ma'am. Thank you. Hi, Shami. Welcome. Namaste. Good evening. आप सभी को शुभ दीपावली और thank you very much, Reena. Now, I could just say three names that time. So the names that I did not take, it's incorrect. Either I say all or I don't. So I'm going to repeat the names. So with Aparna ma'am and Shami ma'am and myself, Reena Alad, here we have six very talented and enterprising and, oh my God, I'm not going to add more adjectives. I'll just say the names. We have Parneet Kaur Grewal, we have Damya Mehta, we have Arjun Khaneja, we have Riddhima Sahani, we have Chanmeet Kaur, and we have Avni Chaudhary with us. So we are going to do a little question answer session, everyone, people. And all these kids are going to help me answer the question, the whys, the whats, and even the wheres. So shall we start? Everyone, can I have an enthusiastic response? Shall we? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Thank you, Arjun. Okay, Arjun, since you were the first one to say yes, ma'am. The first question goes to you. Tell me, now this is simple, this is cheating. Why is Diwali celebrated for not one, not two, not three, not four, but 5 full days, beginning with Dhanteras and culminating on Bhai Dooj? Tell me. Yes, ma'am. Diwali is celebrated for 5 days because it is one of the most celebrated festivals in India. 5 days gives the people the ability to celebrate light over darkness and good over evil. That's all I know. I would like Aparna ma'am to give a better reasoning for this. Well, Arjun, Diwali has, one thing is the weather is very nice. So it is the celebratory time. But otherwise, our history. Am I audible? Tina? Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. हमारी कल्चर बहुत पुरानी है, हमारा सिविलाइजेशन बहुत पुराना है,
हमारे ट्रेडिशंस बहुत पुराने हैं, तो 5 दिन करने के लिए जो हमारा हजारों साल का इतिहास है, जो हमारी हजारों साल की सिविलाइजेशन है, उसमें राम बहुत उनको भगवान का अवतार माना जाता है। तो 5 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें राम की कहानी है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पर एक ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स होती है, तो उसमें लॉर्ड विष्णु है। हमारी हिस्ट्री में, हमारी परंपराओं में ये है कि एक चर्निंग ऑफ ओशन हुआ था, और उसमें से समुद्र में से जब मंथन हुआ, उसका चर्निंग जब हुई, तो उसमें से विष निकला था, उसमें से अमृत निकला था। तो ये 5 दिन का जो सेलिब्रेशन है वो धनतेरस से शुरू होता है, और धनतेरस की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि उस दिन ओशन की चर्निंग हुई थी। हमारा प्लेनेट अर्थ है वो ओशन से निकला है, तो वो जो चर्निंग हुई थी उसमें से एक कलश में भगवान धन्वंतरी निकले थे, देवता थे वो, और उस कलश में उनके पास में बहुत सारी औषधियां थी, दवाइयां थी, और उसी के साथ साथ वो जो चर्निंग हुई थी उसमें बहुत सारे जेम्स वगैरह निकले थे, प्रेशियस स्टोन्स निकले थे, उसी में से लक्ष्मी जी निकली थी। तो फर्स्ट डे धनतेरस इज सेलिब्रेटेड बिकॉज दिस इज द डे ऑफ हेल्थ। हाँ, धन्वंतरी जी हेल्थ का पॉट लेकर के आए थे, और वो उन्होंने मैनकाइंड को दिया था। पहला दिन उससे हुआ। दूसरा दिन जो हुआ उसकी कहानी ये है कि एक बहुत खतरनाक डीमन हुआ करता था, उसका नाम था नरकासुर। उस नरकासुर को कृष्ण भगवान ने, बल्कि कृष्ण भगवान की एक पत्नी थी सत्यभामा, उन्होंने मारा था उसे। तो उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। वो सेकंड डे है। उसको नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं कि इस बहुत डेंजरस फेरोशियस डीमन को कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने मारा था, तो ये नरक चतुर्दशी हुई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, पहले दिन के साथ में जो चर्निंग ऑफ ओशन है कि दवाइयां वगैरह नरिशमेंट लेने के बाद में यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लुक्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली। तो इस दिन सब लोग बड़े तैयार वैयार होते हैं, अपना मसाज करते हैं, अपना बालों को ठीक करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बेदिंग करते हैं। तो सेकेंड डे उसका हुआ। थर्ड डे दिवाली का है। दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्री राम का वो 14 साल का वनवास पूरा करके, रावण को मारकर, सीता को लेकर के, और हनुमान जी और लक्ष्मण के साथ में वापस अयोध्या आए थे। तो इट इज सेलिब्रेटेड एज हिज रिटर्न एज वेल एज कोरोनेशन। उनको फिर अयोध्या का राजा बनाया था। तो दिवाली का इसलिए थर्ड डे का जो बड़ी दिवाली है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है। उसके अगले दिन अन्नकूट मनाया जाता है या गोवर्धन मनाया जाता है। उसके साथ में भी कृष्ण भगवान की कहानी है कि एक बार इंद्रदेव नाराज हो गए थे, उन्होंने बहुत बारिश की, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, और सारे के सारे ब्रज के लोग, ब्रज वो जगह थी जहां पर जिसे गोकुल भी कहते हैं, वो सब लोग उसके नीचे आ गए थे, एंड दे हैड काइंड ऑफ अ फीस्ट। गोवर्धन पर्वत के ऊपर बहुत सारी सब्जियां थी, बहुत सारा धान था, तो बहुत अच्छा खाना बनता है उस दिन। तो अन्नकूट की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उस दिन सब लोगों ने, ऊपर से बारिश हो रही थी लेकिन इतने बड़े पहाड़ की छतरी थी, और सबने खाना बना करके उसको प्रसाद के रूप में खाया। और 5वां दिन जो है वो भाई दूज का माना जाता है। वो यम और यमी सूर्य के बच्चे थे, तो दोनों में बहुत प्यार था। तो यमी को बहुत चिंता ये लगती थी कि यम हर किसी को मार देते हैं, तो उन्होंने अपने भाई को टीका लगाया, तिलक लगाया, और कहा कि आज के दिन जो बहनें अपने भाई को टीका लगाएंगी और ये विश करेंगी कि हमारे भाई की हेल्थ अच्छी रहे, हमारे भाई को लंबी उम्र मिले, तो उनको ये वरदान दीजिए। तो ये बून का दिन है। तो इस तरह से ये 5 दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके लंबा तो जवाब हो गया, पर याद रहेगा आपको? Yes, ma'am. चलो अर्जुन बताओ फिर। यस मैम बोला, बताओ। मैंने तो बड़े इजी वे में याद कर दिया। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। Ma'am, फर्स्ट डे। and first day is Dhanteras. Okay. Second day is Choti Diwali or Narak Chaturdashi.
third day is It's okay, Arjun. हम test दिवाली। नहीं करेंगे। बात सही है, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छा आ गया। इनफैक्ट 5 days go in a blink, we don't even know. अपर्णा, Ma'am, so मैं the ये way you समझ were पा रही हूँ। explaining, तो मैंने तो जो समझा वो था हेल्थ, हाइजीन, उसके बाद मेन दिवाली डे obviously return and togetherness, right? Fourth day went to food, Govardhan, khana, ann, right? And the fifth day was Bhai Dooj, so taking care of each other. बिल्कुल बिल्कुल मैंने उसको इस तरह समझा। हाँ, बिल्कुल रीना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि 5 दिन का जो ये उत्सव है या फेस्टिवल है, इसका मतलब ही यही है कि केवल धन संपत्ति या जो लक्ष्मी है केवल उसी की ही महत्व नहीं होता। हमारे जीवन में 5 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जिसे आपने बोला, हेल्थ बोला, हमारे सिबलिंग्स का या दूसरे रिश्तों का प्यार बोला, सद्भावना, प्रकृति प्रेम, और साथ में उसमें भोजन हो गया, और साथ में हमारी अपनी जीवन मृत्यु या ये सारे जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट। सो दैट्स व्हाई इट इज 5-day celebration. Yes, that's right. Okay, Arjun, back to you again. Do you clean your house? Help your mom and dad clean your house? No, don't look here and there. Answer me. Don't look at phone. No, ma'am. Yes, I do, ma'am. I do. Ma'am, it is usually quite a hassle to do it because Oh my God, okay. But you do it. I am happy to hear that. All right. I mean, usually it takes like an hour or two to properly clean the house, cleaning every aspect of dirt, cleaning that part do of you the do house. some extra cleaning around Diwali and on Diwali? Yes, ma'am. But ma'am, we only do it at Diwali. Okay, And let's not ask. Oh, you do it only at Diwali. Okay, great. So let's ask, maybe let's ask Aparna ma'am, that why does she think houses should be cleaned before Diwali? Well, Diwali comes after monsoon. So one thing is cleaning बहुत जरूरी है, कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं उस समय, कचरा बहुत हो जाता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है उसको क्लीन करने के लिए। और बेसिकली जो मॉनसून के दौरान जितनी भी अनक्लीन चीजें हो जाती हैं उसको साफ करना जरूरी है। दूसरी चीज ये भी है कि ये हेल्थ से रिलेटेड भी हमारा सेलिब्रेशन होता है, लक्ष्मी को बुलाने का, धन प्राप्ति का भी होता है, घर में मेहमान आए तो घर भी अच्छा लगना चाहिए, तो इसलिए भी होता है। तो मौसम से लेकर के और उन डेटी का वेलकम करने के लिए जो खुश होकर के हमें ब्लेस करें और हमें प्लेंटी में उपहार दें, हमें फ्लरिश करने के लिए मौका दें, तो इसलिए हम दिवाली पर क्लीनिंग करते हैं। अर्जुन, समझ आ गया? हाँ मैम। ठीक है, सो अब हैसल नहीं बोलना, क्लीनिंग करनी है, ओके? पर आप देखते होंगे ना कितने मकड़ी के जाले हो जाते हैं, कितने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो उन सबको क्लीन करना बहुत जरूरी है, डिसइंफेक्ट करना जरूरी है, हटाना बहुत जरूरी है। Aparna ma'am, there is a question. You know, I have a loads of questions on why. So this question, नरक और स्वरक बोला जाता है, correct? So ये नरक चतुर्दशी क्या होता है? I have never understood it properly. So please explain. रीना, आपको हिंदू कैलेंडर के बारे में पता है? हम एक तो हमारा कैलेंडर होता है जो इंग्लिश कैलेंडर है, वेस्टर्न कैलेंडर है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च के हिसाब से होते हैं, हाँ जी मैम, डेट्स होती हैं। True. अपना जो कैलेंडर हिंदू कैलेंडर कहते हैं या सनातन कैलेंडर होते हैं, वो मून बेस्ड है, तो 12 महीने इसमें भी होते हैं, लेकिन वो मून का वैक्सिंग एंड वेनिंग के हिसाब से होता है, और महीने में कई बार अधिक मास और मतलब कई बार 12 महीने का एक साल होता है, कई बार 13 महीने का भी होता है, वो मून के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो वैक्सिंग और वेनिंग है, तो देयर इज एक कृष्ण पक्ष है जो कि वेनिंग मून का है, तो दिवाली जो आती है वो वेनिंग मून के समय आती है, और वेनिंग मून का भी 1, 2, 3, तो वो पहला, दूसरा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तो उसको
कोलोकियल लैंग्वेज में चौथ बोल देते हैं या चौदस बोल देते हैं। चतुर्दशी और चौदस एक ही चीज है। तो वो जो चतुर्दशी है वो 14वां दिन है, वैक्सिंग मून का, वेनिंग मून का 14th डे है। और नरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नरकासुर जो था वो इतना उसका आतंक इतना ज्यादा था। ही वॉज अ वेरी वेरी क्रूअल डीमन। तो वो नरकासुर का जो इम्पैक्ट था वो नरक के समान था, जिसमें सफरिंग थी, उसमें एक्सप्लॉयटेशन था। तो उसको नरक चतुर्दशी, चतुर्दशी इज द डे विच इज द 14th डे of the dark phase of moon, and Narak is from Narkasur. So Amavasya is Deepavali. So from first to the waning moon is first day to Amavasya. And then waxing moon is from first day to Purnima. Full moon is Purnima. I am trying to understand, taking the information bit by bit. Yeah. So we have month is divided into fortnight. Yeah. Since it was a question directed by for Arjun and by Arjun, that's why I'm asking him. And I think Shami ma'am is going to add a little more. रीना, हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर, जैसे पन्ना मैम बता रही हैं, वो इतना ज्यादा एडवांस्ड है और उसके अंदर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और ये हजारों साल पुराने की बात है। जैसे मैम ने बोला कि अभी हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है दिवाली से, तो दैट इज विक्रम संवत 2078। बट इफ यू वांट टू लुक एट कि कब एक्लिप्स होगा, किस दिन लूनर एक्लिप्स है, कब जो है 12 साल लगाता है जुपिटर टर्न करने में, तब कुंभ मेला होता है, ये सारी चीजें हम अपने हिंदू कैलेंडर से, बिना नासा की हेल्प से, बिना किसी साइंटिफिक चीजों से हम जान सकते हैं। तो हमारे जितनी भी चीजें हैं रिलेटेड टू आवर फेस्टिवल्स, रिलेटेड टू व्हाट वी डू इन आवर एवरीडे लाइव्स चिल्ड्रन, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक फैक्ट बिहाइंड इट। हम कई बार उसको बोल देते हैं सुपरस्टिशन है, लेकिन हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। सो दैट टेल्स कि हमारे जो ऋषि मुनि जो थे वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट्स होते थे। उन्होंने कपड़े जरूर ऋषियों के पहने होते थे, but inside they were great scientists, and today I think we are going to uncover some of those scientific facts. We already have uncovered a few. Let's go on to few more. Yes. Thank you. Yeah. Okay, Arjun, you're going to get some break now because I can see you yawning. Okay. Riddhima, I can see you itching to answer a question of mine. Okay, so can you try to tell me who was Dhanvantari? And yes, ma'am. And why do we worship? Dhanvantari is the Hindu god of medicine in the avatar of Lord Vishnu. He was the king of Varanasi. He is mentioned in the Puranas as the god of Ayurveda. Dhanteras is the worship of Lord Dhanvantari. Ma'am, can... Riddhima, hold on. Who told you all this? Ma'am, I've asked to my mother. Okay, great. That's nice. You asked your mummy, but someone who says she's a grandmom, so is going to help us on this. Aparna ma'am, before you go, since the time you said you're a grandmother, मेरे को वो गाना मन में तब से आया हुआ है। नहीं, नानी मेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। Reena, you've made me nostalgic because ये हमारे टाइम का गाना है और हम अपनी नानी जी के लिए गाया करते थे। This was very popular when we were children. Yes. Right. Riddhima, you are right, beta. Dhanvantari is god of medicine and he is also considered to be avatar of Lord Vishnu. और वो धनतेरस के दिन मेडिसिन्स लेकर के आए थे, हेल्थ का बून लेकर के आए थे। तो धन्वंतरी उनको पुराणों में, पुराण जो हैं वो हमारी एक तरह से हिस्टोरिकल बुक्स ही हैं, पर वो ज्यादातर वेद जो हुआ करते थे या उपनिषद होते थे वो बहुत क्लिष्ट संस्कृत में होते थे। पुराण ऐसे कि जो कॉमन मैन को समझ में आ जाए वो कहानियों के रूप में होते थे। तो उनको वाराणसी का राजा भी बताया गया है और
एक तरह से मेडिसिन को अमृत माना गया है कि हमें लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ देते हैं। तो धन्वंतरी ऑन द वन हैंड आयुर्वेद का इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के गॉड है, और ऑन द अदर हैंड वो धनवंतरी, वो धन भी देने वाले हैं। सो यू आर राइट कि हमें जो प्लेंटी प्रॉस्पेरिटी देते हैं वो धन्वंतरी देते हैं, अलॉन्ग विद कुबेर हु इज गॉड ऑफ प्लेंटी। Great. So Ridhima, whoever helped you with information. And tell your mom she is right. Huh? Great. Okay. Now we all have heard we should buy some utensils on Dhanteras, and we've also heard that we should buy a broom on this festival, on this day. Why? Why a broom out of all the things? Chalo, utensils to samajh aata hai, but why a broom? Think while we get answers from Shabnam and Bagmama. Ma'am? Yep. Ma'am, I think before Diwali we clean our houses, so we buy a broom on Dhanteras. Okay, Chanmeet, very good. Ridhima, you were also saying something? Ma'am, buying a broom is very important to clean our houses. So you can buy it anything. Why should you buy it on this day? I think we buy the broom, ma'am, because we want to declutter the house. So when our relatives visit, it gives out positive vibes and everything is nice and clean. Arjun, you just said you think it's a hassle. Let's ask Aparna. One thing, you know, brooms in this season are good. मॉनसून में ये जो घास यूज करते हैं हम झाड़ुओं में, वो बहुत अच्छी होती है। तो ज्यादातर झाड़ुएं इसी मौसम में बनती हैं। हाँ, तो जिस तरह से मटके भी होते हैं, वो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है इस समय। दिवाली के समय हम मिट्टी के बने हुए बर्तन लेते हैं, तो बारिश के कारण वो जो बालू होती है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि उसके बर्तन अच्छे बनते हैं। तो झाड़ुएं लेने का एक तो ये पर्पज है कि हमें सफाई करनी है। दूसरा ये भी कि बहुत से लोग बाग जो मजदूर हैं, वो उनकी लाइवलीहुड का भी हो जाता है, एक इनकम का जरिया भी हो जाता है। हमें बहुत अच्छी झाड़ुएं मिल जाती हैं। बहुत कॉमन सेंस का है, तुम काफी सही बोल रहे हो। बस इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि जो बनाने वाले हैं, तो इस मौसम में बहुत सारी झाड़ुएं होती हैं, तो वो बहुत अर्निंग कर लेते हैं इस दौरान। चलो, इसी बहाने हम किसी की मदद भी कर रहे हैं सही चीजें खरीद के, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज वी ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स hoarding so much and buying so many things which are not required, और जो एक्चुअल हाथ के काम करते हैं, जो कारीगर है, जिनको ये सब की जरूरत है, हम इसी बहाने किसी की मदद भी कर रहे हैं by buying those things. Great. I think beautifully explained, Aparna ma'am. So anybody has any question on this? क्या समझ आ गया? बताओ। परनीत, आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. Good. तो फिर अब हम मैम से पूछते हैं, what exactly, why do we do a choti Diwali and a proper Diwali? Why can't we just have one Diwali? What is the significance of a choti Diwali? It's like म्यूजिक का नोट होता है। हाँ, बताइए, पहले आप लोग बताएंगे। Auntie ma'am, sorry, I just thought I thought Ridhima raised her hand. Did you, Ridhima? No? Okay, fine, ma'am, then you carry on. Ma'am, It's like- 1 second. हाँ, Right now, in the first question, ma'am has told that Choti Diwali, Krishna, Satyabhama, and Kali killed Narkasur. Like we can kill our evilness, negativities, and laziness on this day. exactly. That's right. Exactly. You're so right, बेटा। बिल्कुल सही है। वो नरकासुर तो उन्होंने उसको मारा था क्योंकि बात ये है कि हमारी लिथार्जी जो है, हमारा इनर्शिया जो है, हमारी इग्नोरेंस जो है, वो भी बहुत किलिंग होती है, एंड दैट इज आवर वर्स्ट एनिमी, isn't it? So similarly, it's very symbolic that Satyabhama and Krishna killed Narkasur, but we have to first look, because evil is within us, goodness is within us. So which part do we feed? Are we feeding the evil part? Are we feeding the lethargic part? We have to be very active. हम जैसे कृष्ण कहते हैं ना, हमें कर्मयोगी बनना चाहिए, हमें जानकारी लेनी चाहिए, हमें अपनी इग्नोरेंस को दूर करना चाहिए। So that's very symbolic कि हमें सबसे पहले, अभी हमारे सामने
कोई नरकासुर नहीं है. इनफैक्ट वी आर लकी दैट वी आर लिविंग इन द मोस्ट पीसफुल ऑफ द टाइम्स. कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, कोई मिडिल ईस्ट जैसा क्राइसिस नहीं है, कोई और दिक्कतें नहीं हैं. तो हमें अपने अंदर देख करके और हमारी ये सारी बुराइयों को दूर करने वाली बात है, वो इस चतुर्दशी को, नरक चतुर्दशी को हम करते हैं कि लेट्स लुक विद इन एंड लेट्स डू अवे विद दिस. Shami, this was beautifully said. I'm still trying to, get in the thoughts. Beautifully explained, Aparna ma'am. Shami, add on something to this. You always add on some some anecdotes or something. Well, I'm so happy कि Ridhima and Parneet, they said such beautiful things कि we have to kill our inner demons. हमारे अपने अंदर इतनी ego होती है, अहंकार है, laziness है, we don't want to do, अब comfort level में हम जाना शुरू. तो this is the day that reminds us कि okay, if you have not done it so far, this is the time you start doing it. क्योंकि हमारे जो है एक श्लोक है ना, अस्तो मा सद्गम्य tamsoma jyotirgamya. So lead me from the unreal to the real and lead me from the darkness to light. So before we step in and go to Badi Diwali and celebrate Diwali, we have to clean ourselves and move from darkness to light. How beautifully said. Beautiful. रीना, इफ यू परमिट मी, मैं बच्चों से इस बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि ये जो इन्वोकेशन अभी शमी ने बोला है, आप लोगों की प्रेयर में जनरली ये असतो मां सद्गमय बोलते हैं. इसके साथ आप जो बोलना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, हमारा फोरम है. ये जो फोरम है, और इसमें शमी ने बहुत अच्छी शुरुआत की. ये जो दिवाली का पर्व है, इसमें असतो मां सद्गमय, हम असत्य से सत्य की तरफ चले. तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधेरे से उजाले की ओर चले. मृत्युर मां अमृतम गमय, कि हम मृत्यु से, मृत्यु जो है वो भी इग्नोरेंस है, हम अमृत की तरफ चले. तो ये जो है, आप लोग अपने प्रेयर्स में आप लोगों को जनरली स्कूल्स में बोलते हैं. इसमें बहुत ही, दीज आर लाइक वेरी क्रिप्टिक फार्मूलाज. तुम लोग अभी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ोगे तो छोटे छोटे फार्मूले पढ़ोगे. उसी तरह से इसमें सारी की सारी चीज जो दिवाली की है वो शामिल है. और ये सचमुच में प्रार्थना है, और ये ऐसी प्रार्थना नहीं है कि हम किसी से मांग रहे हैं कि भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, हमें ये लेटेस्ट गैजेट दिलवा दीजिए, कि हमें नई टाइप की जीन्स दिलवा दीजिए, कि शूज दिलवा दीजिए, या टेनिस का बैट रैकेट दिलवा दीजिए. तो ये इन्वोकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं. इसी तरह से ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्विनाम वधीतमस्तु माँ विद्विषा वहे. उसका भी मतलब, वो भी एक फॉर्मूला है. संस्कृत अपने को ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आएगी, पर अगर ध्यान से पढ़ोगे, तोड़ तोड़ करके पढ़ोगे, तो उसमें बहुत मर्म है और बहुत गहरी होती है. तो इसमें यह है कि हम लोग सब एक साथ पढ़ें, हम सब एक साथ बढ़ें. हमारी सबकी एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी जो हो, वो हमें ऊपर उठाए, और हमें किसी तरह की कोई द्वेष की भावना नहीं हो, किसी प्रकार का कोई जेलसी नहीं हो, और हम सब लोग अपनी एनर्जी से इस पूरी दुनिया को एफल्जेंट करें, इसको रोशन करें. तो ये जो चीजें हैं, ये दिवाली से संबंधित हैं, अपने जीवन से संबंधित हैं, अपनी प्रेयर से संबंधित हैं. तो शमी ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है. आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा. अगली दिवाली पर हम इन पर बात करेंगे. बिल्कुल सही मैम. सो वी हैव द टॉपिक फॉर नेक्स्ट दिवाली आल्सो. एंड बहुत अच्छी शुरुआत थी और बहुत कुछ समझ आया. और एक्चुअली ये बहुत डीप है, ये जो आपने श्लोक बोला, बट आपने बहुत प्यार से समझाया दोनों ने. एंड जो हम बात कर रहे थे, दैट देयर आर लॉट मेनी एलिमेंट्स दैट गो टुगेदर. सो हम उससे चलते हैं कि why do we worship lot many people or lot many can I say people to Lakshmi, Saraswati, Ganesh and Kuber. So togetherness, worshipping too many. Why do we worship Kuber also on Diwali along with Lakshmi, Saraswati and Ganesh? Ma'am, answer to this question.
And I think before ma'am you answer, I can see Parneet is very quiet. I want her to answer first. Parneet? Ma'am, I have no idea. So, Aparna ma'am, can you please tell why we worship Kuber along with Saraswati, Ganesh ji, and Lakshmi ji? Parneet, I really like it because that's what I also do. If you have no idea, there is no point going on or trying to sound intelligent. It's much more a safer and a better and a more intelligent way to ask. Ma'am, all yours. Well, who's Kuber? Kuber is the treasurer. Kuber is the treasurer of this universe, they say. Like they say, Lakshmi is goddess of plenty, prosperity. But Lakshmi can't keep lock and key all the time. Kuber is the treasurer. All the treasures of Lakshmi are with Kuber. So even if you request Lakshmi ji is not going to give it. She will order Kuber. That, well, you know, there is a bank. आप बैंक में जाते हो ना, तो बैंकर के पास में आपका सारा पैसा है. पैसा तो आपका है, पर वो रखा हुआ बैंक में है. तो इट्स लाइक कुबेर जो है, उनके पास में सारा लॉक एंड की है, एंड ही मैनेजेस एवरीथिंग वेरी ब्यूटिफुली. सो you may say he is assistant of Lakshmi ji, and on the orders of goddess Lakshmi, वो हमें bless करते हैं with prosperity and plenty. And Kuber otherwise was he was brother of Ravan. Did you know that? आप लोगों को मालूम था क्या कि वो रावण का भाई था? मतलब दोनों के फादर एक थे, मदर्स अलग अलग थी. और ये जो लंका है, जो सोने की सिटी, गोल्ड की सिटी हुआ करती थी, तो वो कुबेर ने बसाई थी और रावण ने तो उस पर कब्जा कर लिया था. तो कुबेर का दूसरा रूप भी है. कुबेर वैसे ही इज वन ऑफ द गॉडमेन. गॉड हम कहते हैं ना कि गॉड तो एक ही है, जिसे ब्राह्मण भी कहते हैं. बाकी सब जो है वो डेमी गॉड्स हैं या उनके असिस्टेंट हैं. तो एक तरह से कुबेर जो है वो डेमी गॉड्स की कैटेगरी में उन्हें रखा जा सकता है, पर वो रिचनेस को पर्सोनिफाई करते हैं. आप देखिएगा कोई भी ज्वेलरी की दुकान का नाम होगा, बड़ी शोरूम होगा, उसको कुबेर नाम देते हैं. तो कुबेर को इसलिए पूजा जाता है कि वो हमें प्रॉस्पेरिटी से प्रॉस्पेरिटी दें. ही इज द रियल ट्रांजैक्टर. एंड अलॉन्ग विद दैट हम सरस्वती की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि सरस्वती इज गॉडेस ऑफ नॉलेज. एंड ऑफ कोर्स गणेश जी तो प्रथम देवता है. उनको लॉर्ड शिवा ने बोन दिया था कि सबसे पहले आपकी पूजा होगी. उनको गणपति कहते हैं, गण देवता भी कहते हैं. आपको मालूम है गण क्या होता है? हाँ, हमारा गणतंत्र है, रिपब्लिक डे जब हम कहते हैं, हाँ, पब्लिक से बना है गण. गण मीन्स पीपल. सो गणपति इज गॉड ऑफ पीपल. हमारे जो देवता हैं, पहले देवता, वो गणपति हैं. सो ही इज पीपल्स गॉड. इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी की वर्शिप करते हैं. सरस्वती की क्योंकि वो हमें नॉलेज देती हैं, हमें इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर लेके जाती हैं. और कुबेर हमको प्रॉस्पेरिटी देते हैं. और लक्ष्मी जी जो हैं वो तो शी इज द गॉडेस ऑफ द 5 days. सो ट्रू अपर्णा मैम. केवल जैसे बात हो रही थी कि धन और लक्ष्मी ही केवल इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपने कहा जैसे गणपति जी वो विवेक के भी, बुद्धि के भी भगवान माने जाते हैं, और साथ में सरस्वती जी भी. तो वी आर नॉट कंप्लीट विदाउट नॉलेज, वी आर नॉट कंप्लीट विदाउट अ सेन माइंड. बुद्धि और विवेक के बिना अगर हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, इट इज ऑफ नॉट दैट सिग्निफिकेंस. True. So a calm mind is, Yes. गणेश जी माइंड को काम बनाते हैं. इट्स नॉट एन एजिटेटेड माइंड, इट्स अ शांत मन जो होता है वो उससे मिलता है. बिल्कुल. ऑस्पिशियसनेस, प्योरिटी, कामनेस, विवेक जिसे हम बोलेंगे. And Parneet, I understood now why we celebrate Kuber along with Lakshmi, Saraswati and Ganesh. I hope you have. Because जब तक कोई आके ताला ही नहीं खोलेगा, what will you do? How will you imbibe, be it wealth or education or, I mean, as in knowledge or anything, correct? So we need Kuber to come and open the lock, as Aparna ma'am said. So that is why we worship Kuber as well on the same day along with everyone. Worshipping we all do otherwise as well as on Diwali. But there is one more thing that we all love to do.
We love to eat the yummy goodies. Yeah. So who likes which mithai? Chalo, Parneet, aap, which is your favorite mithai? Ma'am, my Gulab favorite jamun. sweet is besan ki barfi. ये अर्जुन आपकी भी आवाज आई थी, बताओ. I mostly eat gulab jamun. Yeah, even I want. Let's after this, okay? We'll have gulab jamuns. But why do we keep kheer, batasa, jalebi, and even khilone in Lakshmi Puja? Parneet, any idea? Ma'am, I don't know the reason behind it. मैम बस मैं इतना जानती हूँ कि हम इसे आफ्टर लक्ष्मी पूजा हम प्रसाद के लिए रखते हैं, एंड जब लक्ष्मी पूजा फिनिश हो जाती है तो हम अपने रिलेटिव्स, कलीग्स एंड फ्रेंड्स को हम प्रसाद के रूप में देते हैं. अपर्णा मैम, थोड़ी सी रोशनी डालिए इसके अलावा क्यों करा. मैं ट्रेडिशनली बता सकती हूँ रीना कि धान बहुत होता है. हाँ, बारिश के बाद में ये दिवाली एक तरह से सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट भी है, क्योंकि फसल पक चुकी होती है, हमारे घरों में पहुंच जाती है, नई नई चीजें होती है, नया धान होता है, नई शुगर होती है. तो एक बात तो ये भी है कि ये जो नई फसल है उसको भून करके, पहले तो भड़भूंजे के यहाँ पर भूना करते थे, और पहले इतने हलवाई नहीं होते थे, एग्रेरियन सोसाइटीज हुआ करती थी, तो ट्रेडिशनली खील बताशे जो हैं, खिलौने वगैरह, वो जो लोकल काम करने वाले लोग होते थे, चाहे वो भड़भूजा हो, चाहे वो शक्कर से मिठाइयाँ बनाने वाले लोग हों, और वो प्लेंटी में अवेलेबल हो जाया करते थे. तो इस वजह से जो मैं समझती हूँ वो खील बताशों की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि लोकल लोग इसको बनाते थे, बच्चों को बहुत पसंद आता था, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता था, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं हो सकती, और किसी भी वक्त खा सकते हैं. मैम आपने तो बहुत खाए होंगे, है ना? मैंने बहुत खाए हैं. इनफैक्ट मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में होते थे और उनका पोस्टिंग मुफस्सिल टाउन्स में हुआ करता था. तब तो जीपें वीपें भी नहीं होती थी, कारें नहीं होती थी जैसे आजकल पुलिस के पास में होती हैं. और मैं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में भी रही हूँ, और वो भी रही हूँ जहाँ पर फॉरेस्ट कवर बहुत होता था. तो आई रिमेम्बर माई फादर मूविंग अराउंड ऑन हॉर्सेस, और जहाँ पर पुलिस स्टेशंस हुआ करते थे, पुलिस लाइंस हुआ करती थी, आसपास खेतों में हम देखते थे गन्ने की खेती हो रही है, और सडनली गन्ना कट जाया करता था, फिर बाजार में गुड़ आ जाया करता था, और ये खिलौने विलौने आ जाया करते थे, खाने पीने की चीजें आ जाया करती थी. तो हमें बड़ा मजा आता था, और हमें ये लगता था कि ये कैसे, आई मीन दैट होल सर्कल ऑफ हार्वेस्ट, फसल के कटने के बाद में और हमारे घरों तक पहुंचने में क्या उसका रिलेशनशिप है, वो भी समझ में आ जाया करता था. शमी, आपने कभी खाए? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी जब हम पूजा करते हैं तो ये सब रखते हैं. और जैसे मैम ने बोला कि ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो वो डिफरेंट शेप्स जब बनाते हैं तो चिल्ड्रन लाइक टू सी, क्योंकि पहले के जमाने में तो वैसे भी खिलौने और ये सब चीजें थोड़ा सा एक डिफरेंट तरह की होती थी. एंड आई थिंक सो, अगर आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक सो कि ये खील बताशे इसलिए बनाए जाते थे बिकॉज दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. और सर्दियों के दिनों में मिठाई वगैरह जो है घर में हो, और मीठा खाने का मन भी बहुत करता है सर्दियों में. So something that does not perish if you have to send to your relatives और आसपास के गांव में या कहीं पे भेजते थे, तो ये खराब नहीं होते होंगे मेरे ख्याल से. इस वजह से भी इनकी पूजा में जरूर इसको इंक्लूड किया जाता है. I'm sure. परनीत, आप इस सबके साथ बेसन की बर्फी भी रख लेना, नॉट अ प्रॉब्लम. अर्जुन, आप गुलाब जामुन रख लेना. मैं चन्मीत और अपनी से बाद में पूछूंगी उन्होंने क्या रखना है, ठीक है? फेवरेट्स वो तो जरूरी है, right? One thing that has always bothered me, we've heard from times immemorial that people used to keep their doors open on Diwali, and lights also on and doors open. पहले तो रख ली, अब कैसे रखें? अब तो चोरी हो जाएगी. The world is not that safe. But what exactly is, from where does it come, Aparna ma'am? When did it start that just keep your doors wide open?
इसकी मुझे लगता है दोनों तरह से सिग्निफिकेंस है। एक तो खैर ये कि साइंटिफिक टेम्पर रखते हैं, तो लक्ष्मी को अगर आना होगा तो वो तो कहीं से भी आ जाएंगी, उनको दरवाजे की जरूरत नहीं है, वो वाली बात नहीं है। पर मैं सोचती हूँ दरवाजा अगर खुला रखते हैं, सारे दरवाजे अगर घर के अगर खोल दे, तो आप ये भी रियलाइज करेंगे कि बड़ी एयर सर्कुलेशन होता है, क्रॉस वेंटिलेशन, so that's क्रॉस the scientific वेंटिलेशन होता है। reason behind it. तो वो एक बड़ी चीज है उसकी। और दूसरा ये कि एक ओपनली आप मूव अबाउट करें। एक दिन ऐसा है कि आप आराम से बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, ये नहीं कि घर को अनसेफ छोड़ करके और कहीं पर चले जाएं। पर मुझे लगता है कि शायद क्रॉस वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, और पुराने जमाने में जरूर ये है कि कोई भी किसी भी अतिथि आ सकता है, रिलेटिव्स आ सकते हैं, बच्चे भाग दौड़ कर सकते हैं, तो इस वजह से घर को खुला रखने का ये जो ट्रेडिशन है ये रहा। और जैसे बता देते हैं ना कि हम बहुत सारी चीजें, हमारी दादी बहुत कहती थी कि इस पेड़ को, तुलसी को मत तोड़ करके फेंको, पीपल को मत काटो, इस पेड़ को ये मत करो, ये बहुत पवित्र है। पर हम ये जानते हैं कि पीपल है, बरगद है, ये एनवायरनमेंट को बहुत सही रखते हैं। तो उसके साथ में कहीं ना कहीं पर हम कहानी अपनी इससे, माइथोलॉजी से, अपने रिलीजन से करके रख देते हैं। पर उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, उसके पीछे क्लेanलीनेस की बात है, सर्कुलेशन की बात है। Ma'am, after this, we'll go into details. You being an environmentalist and you've done so much on sustainable development and everything. So we'll talk in detail later about this and take your views on this. I can see Damya is very quiet. Damya, get up, get up. Next is your question. What is Annakut? मुझे नहीं पता. Don't tell anyone. Annakut is Govardhan Puja and it means a variety of food. That was I know. Very good. That means you were attentive when Aparna ma'am was telling, which is the day of Govardhan Puja, and it's called Annakut also. It is the 4th day. Very good. Yes. Aparna ma'am, she's passed the exam. Actually, there is no exam going on, but generally she's passed, cleared everything in flying colors. पर अगर इसको आप ब्रेक भी करें, अन्नकूट, अन्न जो है और कूट मतलब कुटा हुआ अन्न, हाँ, कूट करके जिसे बनाते हो। आजकल तो घर में कूटने की चीजें पता नहीं है आपके यहाँ पर या नहीं है, पर अन्नकूट से मतलब ये है कि मिला करके खाना बनाया जाए। बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं, हरी सब्जियां आ जाती हैं, एकदम से चेंज हो जाता है ना, आपका भिंडी टिंडे से पीछा छूटता है और आप बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां हो जाती हैं, गोभी, पत्ता गोभी, शलगम, मूली, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ऑन द वन हैंड अन्नकूट के दिन ये मिला जुला भोजन जो बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है, वो बनाया जाता है। दूसरी ओर कूट करके कई जगह पर चूरमा दाल बाटी बनाया जाता है, उसका बाटियां बनाई जाती हैं। तो अन्नकूट का ये है। और ये अन्नकूट वाला दिन एक कम्युनिटी का डे होता था। आई रिमेम्बर हमारा जो उस जमाने में मोहल्ले हुआ करते थे, तो हर मोहल्ले में 20-25 घर होते थे, तो सब लोग मिलकर के वहां पर पूजा किया करते थे और खाना सबका एक साथ बना करता था। तो ये एक कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी कुकिंग, कम्युनिटी फूड ईटिंग एक पार्टी हो जाया करती थी। तो अन्नकूट जो है वो बेसिकली सीजन की पार्टी है, चेंजिंग सीजन। दिवाली के बाद में आपने खूब पूड़ी, आलू की सब्जियां और छोले भटूरे और मिठाइयाँ खा ली। अन्नकूट तक आते आते हमें थोड़ा सा अपने स्टमक को कुछ हरी सब्जियां, कुछ मिक्स वेजिटेबल्स, कुछ हल्का खाना खाने की बात है। तो अन्नकूट के दिन वो किया जाता है। और इस दिन हम एक तरह से अपने लाइफ स्टॉक को भी, हम अपनी गाय की पूजा करते हैं। उस दिन गोबर से गोवर्धन बना करके, गोवर्धन पर्वत को गोबर से बनाए जाने की परंपरा रही है। तो ये भी है कि हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ स्टॉक की, और खास तौर से गाय की, बैल की, बछड़े की। तो वो भी सिग्निफाई करता है उसको। तो उसमें सब लोग मिलकर के पूरी कम्युनिटी के एक साथ पूजा करते हैं। और कुंज कुंज परिक्रमा दे मानसी गंगा श्री हरिदेव, ये इस तरह से गाना गाते हैं। तो मैं गा के सुनाइए ना। अरे मैंने आज तक गाया नहीं, पर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं गा देती हूँ। हाँ, थैंक यू मैम।
कुंज कुंज परिक्रमा दे, मानसी गंगा श्री हरिदेव। कुंज कुंज परिक्रमा दे, मानसी गंगा श्री हरिदेव। बस चक्कर काटते रहिए। बच्चे सबसे ज्यादा फालतू होते हैं, उन्हें मजा भी बहुत आता है, वो दौड़ भी लगाने लग जाते हैं, फिर वो जंप भी करते रहते हैं इधर से उधर। सो इट्स क्वाइट it's something very enjoyable. We are enjoying listening to it only, ma'am. So मैं I'm sure सोचती we हूँ all कि were actually enjoying the song हो and सकता है आप अर्जुन, आप फिर गोवर्धन बनाए भी और फिर मम्मी पापा से कहें कि मम्मी पापा हमको पूजा करनी है, और फिर तुम बना करके। बड़ा आर्टिस्टिक, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझती थी, मैं बनाया करती थी उसे। तो बच्चों के लिए एक बहुत क्रिएटिव काम है। और मैम आपने जैसे बताया कि कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी ईटिंग, तो यानी कि दिवाली जो हम 5 दिन की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट सेल्फ, इट इज नॉट ओनली अबाउट वेल्थ, इट इज ऑल्सो अबाउट टुगेदरनेस, जो एक बॉन्डिंग है, सोशल लिविंग है, ताकि हम उस रिश्तों को भी समझें और उनकी भी कदर करें, उनको अप्रिशिएट करें। वी गिव, टेक एंड बिलीव इन टुगेदरनेस। और लाइफ स्टॉक का तो आपने बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि कृष्ण भगवान जी को तो गाय से बहुत ही प्रेम था, एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वट एवर जो गाय हमें देती हैं, कितना उसका यूजफुलनेस है। आई थिंक चिल्ड्रन, यू वुड बी लर्निंग दिस इज टुडे इज सच अ ब्यूटिफुल डे फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक एक छोटी छोटी चीज, नॉट ओनली बिहाइंड दिवाली, बट व्हाई इट इज बीइंग डन। हम क्यों करते हैं, उसके क्या रीजंस हैं, और वो कैसे हमें हेल्प करता है, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। सो वी आर सो थैंकफुल टू अपर्णा मैम, शी इज रियली गिविंग अस सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोग बता रहे हैं हमें, ये तो बिल्कुल आप ही लोगों ने सारे जवाब दिए हैं, पर दिस इज नोइंग आवर रूट्स, वेयर, हाउ वी आर मेड, हाउ वी हैव कम अप, कहाँ से हम शुरू हुए हैं। हम लोगों की रूटलेसनेस तो नहीं है, हम आए हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, और ये ट्रेडिशंस भी चलते आ रहे हैं। उसको समझने में कोई खराबी नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं है उसको ना करें, पर जो चीजें इंटरेस्टिंग है उससे हमारा एक दूसरे से जुड़े रहना बना रहता है, तो उसे करना चाहिए। Let's just run over a few more things so that a few whys are answered. मेरे whys मुझे खत्म कर दो please. क्यों नहीं रीना, अगला why पे आ जाइए अब आप। बिल्कुल, तो अगला why है, why do we use गेंदा फूल? Why not any other flower? Why is it just गेंदा फूल for decoration? No, I know I've heard the song Sasural Genda Phool, but that came much later. Why is the tradition of Genda Phool? It is said to be very auspicious, and it is a mark of good fortune as well. Okay, true. And so, and what is the significance of mango leaves? Mom, that I really don't know. I want Aparna ma'am to answer. Aparna, Shami ma'am. Every time. शमी मैम को येलो कलर भी पसंद है, आम भी बहुत पसंद है। हाँ शमी मैम, आप बताइए। देखो, मैंने आपको बताया कि हमारी हर छोटी से छोटी चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि जो सबसे पहले तो दिस इज द सीजन व्हेन मेरीगोल्ड जो है, गेंदा जो है, बहुत ब्लूम करता है और बहुत क्वांटिटी में मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू सी, गेंदे का कलर क्या है, येलो है, ऑरेंज है, और जो सनराइज का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो ऑरेंज। दैट मीन्स व्हेन द सन इज राइजिंग, तो हमारी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, हमारी वाइटैलिटी होती है, वो एट पीक होती है इन द मॉर्निंग्स। तो जो येलो कलर है वो सिग्निफाई करता है पावर के लिए, वाइटैलिटी, पॉजिटिविटी, गुड जो है ना एनर्जीज के लिए, कि दिन निकला तो अंधेरा छट गया, अच्छी एनर्जीज आई। That's why we use गेंदा फूल too frequently. Also कहते हैं कि गेंदा जो है पेस्ट रेपेलेंट भी रहता है, तो जब हम घरों के बाहर लगाते हैं तो सर्दियों में थोड़ा सा, क्योंकि इट्स द ऑनसेट ऑफ विंटर्स, तो उस समय घर में अंदर पेस्ट्स या वो सब नहीं आए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैंगो लीव्स भी एक ऑस्पिशियस ही है। भगवान शिव जी को और पार्वती जी को मैंगो जो है बहुत पसंद है,
तो इसीलिए। और जब हम लक्ष्मी पूजा में भी लगाते हैं ना रीना नारियल को, उसके नीचे हम गेंदे के मैंगो के लीव्स लगाते हैं। सो नारियल इज कॉल्ड द श्रीफल इन आवर वेदास बिकॉज इट्स वेरी नॉट ओनली ऑस्पिशियस बट बहुत ही हेल्दी भी होता है हम सबके लिए। तो जो नारियल है उसको कहते हैं कि भगवान का वो हेड है, और जो आपके मैंगो के लीव्स हैं दे आर कॉल्ड द लिम्स ऑफ गॉड। सो दैट इज हाउ वी इनकार्नेट, और जब भगवान को हम अपने उस रूप में लेकर के आते हैं पूजा के दौरान। So I think that is the important significance, but I think Aparna ma'am might be able to add on something to it. मुझे तो ये येलो कलर बहुत अच्छा लगता है और मुझे बड़ी वाइब्रेंस लगने लग जाती है उसमें। तो आप लोग बहुत सही हैं, सबने सही बताया, इसीलिए गेंदे के फूल को करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये जो अशोक की और आम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, ये एक नेचुरल तरीका है प्रूनिंग का, कि मानसून के बाद में पेड़ों में बहुत पत्तियां वगैरह भी आ जाती हैं, तो इस मौसम में पूजा में अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो प्रूनिंग हो जाती है उसकी, और फिर नई पत्तियां वगैरह आती हैं, तो वो इजी रहता है। So apart from the color, it's lots of and the good vibes and the positive energy. It has lots of health benefits also. All these things. That is why when we go to traditions, we talk about traditions. That is how we realize that almost everything, there was some base in most of the things that we do. Yes, by and by in life, some things started becoming superstitions, but there was a base in most of the things that was followed by our fathers and forefathers and everyone behind. बेसिकली इन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने हर जो साइंटिफिक लॉजिक था, हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने उसको रिलीजन के साथ या पायसनेस के साथ जोड़ दिया। क्योंकि जो हमारे कल्चर में जो है ना, इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो लोग इसको करेंगे ही करेंगे। जैसे पीपल को कह देते हैं विष्णु का वास है, तो किस लिए? क्योंकि पीपल से बहुत ऑक्सीजन निकलती है, तो जब विष्णु का वास बोल दिया तो कोई भी उस पीपल के पेड़ को नहीं काटेगा, एंड दे विल गेट लॉट ऑफ ऑक्सीजन विच इज गुड फॉर लिविंग। तो they have associated it with religion, but these are all scientific things, children. We might call it superstition कि ये नहीं करना वो नहीं करना, but there is a logic, a reason behind it. Behind most of the things. Yes. We can't say all. Most of the things, yes. Great. Okay. So what does रंगोली, हमारे पीछे बहुत रंगोली बनी है, हम सब ने बड़े अच्छे रंगोली बैकड्रॉप पे लगाया हुआ है। रंगोली, हाँ दामिया, रंगोली आपने रंगोली नहीं बनाई, बट आप बताओगे मेरे को that what is it significant for? Ma'am, Rangoli is usually made on Diwali, Pongal, and other Hindu festivals. It creates positivity all around. It makes your house beautiful, decorative, and children also love to make Rangoli, and it is a sign of welcoming Goddess Lakshmi. Correct. Very beautifully said. Ma'am, And yes, please. ma'am, Rangoli is made for our happiness. It makes us happy. Yes, it does. Because And it is so colorful, bright. next time whenever you make the rangoli, please send us all a picture. So we'll also be happy and we'll see your happiness also. Okay, do that. Right. So we have always lit diyas, lights on Diwali. And we used to burst firecrackers as well. I'm saying used to because by and by, because of the pollution concept, we all have stopped bursting firecrackers, but we all used to as kids. And of course, diyas is still done, candles and diyas. Ma'am, would you want to add some little thought purity around this, Aparna ma'am? दिए का सबसे बड़ी चीज तो तेल में जलाते हैं, तो वही बात है कि अभी शमी बता रही थी कि प्रेस बहुत हो जाते हैं, तो सरसों के तेल में, तिल के तेल में जब हम दिया जलाते हैं तो वो माहौल जो है वो साफ हो जाता है, प्योरीफाई होता है उससे, और मच्छर बाकी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो दिए जलाने के पीछे तो यही बात है। और मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि कितनी भी आप रोशनी कर लें बल्बों से, जो रोशनी दिए की होती है और वैसी रोशनी कभी नहीं होती और किसी की नहीं हो सकती। वो केवल
एक्सपीरियंस ही की जा सकती है, अनुभूत की जा सकती है दिल से, जिसे आप कहते हैं ना, मन से और दिल से। बच्चों, आप भी दिया जला करके देखना और फिर देखो कि सचमुच में अंधेरे में जो रोशनी होती है छोटे से दिए की, कितनी सारी चीजें हैं। सूरज को दिया दिखाने की बात में है, या अंधेरा हो गया और एक छोटे से दिए ने कहा कि हाँ मैं रोशनी करना चाहूंगा, तो वो छोटे से एक ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अंधेरे को हटाने में हो सकता है। तो वो वाली चीज है। और दूसरी चीज रही क्रिएटिविटी की, सारे घर के मेंबर्स, सारे बच्चे मिलकर के दिए जला रहे हैं, एक दिए से दूसरा दिया जला रहे हैं, वरना तो स्विच ऑन किया और सारी बिल्डिंग जगमग हो गई। उसमें इतना मजा नहीं आता। रंगोली बनाने में, खुद बनाने में जो मजा आता है, दिया जलाने में जो मजा आता है, बत्ती लगाने में, उसको जलाने में, बुझ गया तो वापस करने में कितना मजा आता है। तो वो it increases the bonding also, no? It increases the bonding, indeed, yes, yeah. तो इसी वजह से दिया जो है वो अपनी कल्चर में दिया बड़ा सिग्निफिकेंट चीज है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। हर कोई दिए के बारे में जानता है कि दिया जला रहे हैं। आपके गाने हैं, गीत हैं, मम्मी की लोरियां हैं, बहुत सारी चीजों में दिया आता है। तो साइंटिफिक भी है, क्रिएटिव भी है और खुशी देने वाला है। तो मैं सबसे बड़ी चीज तो मानती हूँ कि त्योहार होता है आनंद के लिए। हाँ, मन में खुशी आती रहे, बॉन्डिंग बढ़ती रहे, एनर्जी बढ़ती रहे, उसके लिए ये है। तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। I want to say something on crackers. बोलो बेटा। हाँ, I read somewhere that crackers are not a part of Diwali. People just burst it just for their happiness, but they don't know how problem they are causing to asthmatic and old people. They think that what just one cracker will not make any difference, but each one of cracker is responsible for that day that will come in future when people will not able to breathe. So today I want to request people, whoever is watching this live event, that let's make this Diwali an eco-friendly Diwali. We can do anything else. We can help our parents to just light our houses, light up diyas, make rangoli, and we have so many things except bursting crackers. Thank you. Very well said. And we can probably, the money we want to burn in crackers, we can help people who need help. We can do that. And then the happiness that we'll get on our faces will be much more than that which we see when we burst crackers. Very well said, Dam. Congratulations. I'm so happy with your feeling, and you're so passionate about it that, it ruins the environment. And it also increases the temperature of this earth. So I hope, आपके दिल की जो बात है उसको हर कोई समझे और pollution ना बढ़े. बिल्कुल. And Chanmita बहुत चुप है. You tell me, why do we exchange gifts on Diwali? There are so many gifts behind in your backdrop. So I want to know, why do we exchange gifts? Ma'am, Diwali is known for Diwali is the festival of love and prosperity. So, ma'am, giving gifts to each other is an oldest tradition in India. So, ma'am, we exchange gifts on Diwali. It denotes the expression of companionship and fellowship among people. Ma'am, traditional gifts on Diwali are Lakshmi Ji and Ganesh Ji's idols. Ma'am, why do we give Lakshmi Ji and Ganesh Ji's idol to our neighbors or family friends? Aparna ma'am, can you please light us? Yes, I'm sure Aparna ma'am will shed some light on this. That why Lakshmi Ji and Ganesh Ji. We did talk about the significance of that, but I'm sure Aparna ma'am would want to add a little more here. वैसे तो तुमने बहुत सही बता दिया बेटी कि गिफ्ट्स हम इसलिए एक्सचेंज करते हैं, और लक्ष्मी जी और गणेश जी की इसलिए तस्वीरें देते हैं कि नई तस्वीरें आ जाती हैं तो उसको पूजा रूम में रख के और फिर उसकी पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है वो देना। मुझे ये एक फीलिंग की बात है और प्यार से दिया जाता है और वो पूजा के काम आता है, तो बहुत बड़ी चीज है। मुझे इसके आगे तो कुछ नहीं पता। शमी, आप कुछ बताएं तो बताइए। पर गिफ्ट इज अ गिफ्ट एंड गिफ्ट इज अ ग्रेट थिंग। अपर्णा मैम, मैं सोचती हूँ कि जो
मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं उसमें वो एक उतना वो नहीं होता है, वो तो कभी खत्म हुई ये हुई, बट व्हेन वी are talking about Lakshmi Ganesh, they bring those positivity, they bring those kind of energies in our home. तो जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं कि ओके इनके साथ अच्छा हो, तो it's better to give a Lakshmi Ganesh or something that brings positive energies to their house. Indeed. Thank you. That's okay. Chanmeet, what is the best gift that you got on Diwali that you remember, you cherish? Ma'am, I have got an iPad on Diwali. Oh my God, that is a big gift. But I'm sure you must have been very happy. Yes, ma'am. Good. That's great. Small gifts or big gifts, it just gives you happiness. That is right. And in fact, everybody gets so many gifts on Bhai Dooj as well. So like we heard the 5 days that are celebrated for Diwali, the last being Bhai Dooj. Correct, Shami? That was the 5th? Ma'am? Yes, please. The best ever gift I have got from my parents is that they love me. so sweet. That's it. And Well you are said. the best gift of God to them, I'm sure. You You said it, listen. Aparna ma'am. I was just going to add that. Absolutely. Beautifully said. So, and I'm sure we get a lot of gifts on Bhai Dooj as well. We've already covered why we celebrate Bhai Dooj. Is there anyone who did not understand this big why? Then we will ask Shami ma'am or Aparna ma'am to answer a bit more. Otherwise, we will try to get a little more answers to a couple of more questions and then wind up. Aparna ma'am, do you want to add something on this, on Bhai Dooj? मैंने आपको बताया था बच्चों की यम और यमी 2 भाई बहन थे, उनके पिताजी का नाम था सूरज. हाँ, सूर्य देवता जो होते हैं ना, वो उनके पिता थे. और यम और यमी को एक दूसरे से बहुत प्यार था, पर यम was always on the run क्योंकि वो he was the god of death. And Yami wanted to spend her time with her brother और वो कभी available ही नहीं होते थे. तो उन्होंने एक दिन तय किया कि हमें दिवाली के 2 दिन बाद मिलना है. और यमी को जब ये भी पता चलता है, उसे बड़ा दुख होता है कि मेरा भाई क्या करता रहता है हर समय, कि लोगों की डेथ हो जाती है और सबको लेकर के यमलोक में जाता है. तो यमी बड़ा पक्का करके वो कहती है कि इस बार भाई आएगा, मैं उसकी पूजा करूंगी, उसको टीका लगाऊंगी, उसे मिठाई खिलाऊंगी और उससे कहूंगी कि आप जो बहनें अपने भाई के लिए उनकी लंबी उम्र का विश करती हैं, उनकी सेफ्टी की विश करती हैं, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए विश करती हैं, इस दिन भाई दूज के दिन आप उनको बूंद दोगे कि उनके भाई की लंबी उम्र होगी. तो जब यम आए यमी के यहाँ पर, और यमी जो है, यमी कौन है? यमुना नदी का नाम सुना है ना आप लोग? दिल्ली में है, यमुना नदी है वहां पर, है ना? तो यमुना नदी जो है उसको यमी भी कहते हैं. तो उन्होंने अपने भाई यमराज से ये बूंद मांगा दुनिया की सारी बहनों के लिए, और उस दिन से ये त्योहार मनाया जाने लग गया. और सारी बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को टीका लगाती हैं. आजकल तो ज्यूज भी भाई दूज मनाने लग गए हैं. आई वेंट टू US, I met a few families and they said, we love your Diwali and we love especially the Bhai Dooj, the festival of sister and brothers, where the sisters are wishing for the health and longevity of their brothers. So that is the story behind it. And I see that, it not only shows the love of brother and sister, but it also shows that, the wish for the mankind, so that there is no sickness, that there is no कोई अकाल मृत्यु नहीं हो किसी की, और बहनों और भाइयों में प्यार बना रहे. बिल्कुल अपर्णा मैम, इस दिन हम वो अभी बोलते हैं ना, मार्कंडे जय उमर हो गए. हाँ. सूरज छोड़िया भी मार्कंडे जय उमर हुए. सो व्हाट इज मार्कंडे? मार्कंडे हमारे एक ऋषि थे जो भृगु ऋषि के यहाँ पे हुए थे. एंड ही उनकी जो लंबी उम्र और इमॉर्टैलिटी है उसको लेकर के बहनें विश करती हैं कि हमारे भाई की भी उम्र. How sweet. This was new. And Chanmeet अभी पीछे वो बार-बार बहन भाई का एक चित्र भी लगाई जा रही थी. That also really gelled well with the story Aparna ma'am was telling us.
Yes. पर ये भी है कि जिनका भाई नहीं है वो अपनी बहन को भी भाई मान सकते हैं. बिल्कुल. This is बिल्कुल. about sibling love, basically. बिल्कुल. Sibling love. Sibling love is what we say now, and actually that is correct. Avni, you've been very quiet almost entire time. So you're going to tell me, is Diwali celebrated by just one particular religion, or is it followed by almost all the religions in India? Yes, Diwali is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, and even Buddhists. But as like Aparna ma'am said, that Americans are also making Diwali, enjoying this festival. So That's right. They're also enjoying the festivity and the togetherness and love that goes behind it. yes, and but nonetheless, the festival represents the same symbolic victory of light over darkness, knowledge over ignorance, and good over evil. So anyone can make Diwali. Enjoy this festival. That's right. आपको पता है इस बार जो दिवाली हो रही है यूएस में, इतनी बड़ी दिवाली कभी सेलिब्रेट नहीं हुई वहां पर. They are going to celebrate it at the largest ever since. We'll see the telecast or the videos that go, the live streaming is going to happen. So we'll all watch that. Yes. Aparna ma'am, is there you did mention about relationship between Lord Rama and Lord Krishna, but that was just in passing you told us. So why don't you enlighten us a little more about, what exactly is the relationship between them? राम और कृष्ण जो है वो कंटेम्प्रेरी नहीं थे और दो अलग अलग व्यक्ति तो थे पर दोनों अलग अलग युगों में थे. उनका रिलेशनशिप सिर्फ यही था कि दोनों भगवान विष्णु के अवतार थे. हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि भगवान जो है वो भी अपनी मतलब इतनी शायद बोरिंग लाइफ हो जाती होगी कि उनको मन करता है कि हम कभी धरती पर आए और यहाँ पर जो डायनामिज्म है, जो बैंग बैंग होता है, अप्स एंड डाउन्स है, उसको भी एक्सपीरियंस करें. बट दैट जोक्स अपार्ट, राम और कृष्ण अलग अलग युगों में हुए थे बेटा. देयर वाज अ त्रेता युग और देयर वाज अ द्वापर युग. तो श्री राम जो हुए थे वो त्रेता युग में हुए थे और वो भी भगवान विष्णु के अवतार थे, और द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए थे. और राम की जो कथा है उसको रामायण भी कहा जाता है और लगभग 500-550 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में भी उनकी कथा को बताया है. और कृष्ण की जो कथा है वो हमें महाभारत में देखने को मिलती है और कृष्ण ने एक सॉन्ग ऑफ गॉड के रूप में श्रीमद् भगवद गीता हमें दी है, जो एक तरह से हमारे लिए यूजर मैनुअल है कि हम कैसे लाइफ को लीड करें. तो एज सच रीना, जो आप कह रही हैं, खून का कोई रिश्ता नहीं था, पर थे दोनों के दोनों भगवान विष्णु के रूप. और एक और रामचंद्र जी जो है, राम की जो कथा है वो बहुत ज्यादा भावना से भरी हुई है, बहुत इमोशन से भरी हुई है. उसमें हर कैरेक्टर जो है वो उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत गहरे तक टच करेगा और आपको इंस्पायर करेगा, कोई भी हो उसमें. हाँ, और कृष्ण कथा जो है, जो महाभारत की कथा है, उसमें सब कुछ है. वो युग डिफरेंट था. तो उसमें कहते ये हैं कि महाभारत में जो सब हुआ वो सब कुछ है जो इस दुनिया में होता है, और जो इस दुनिया में नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत में नहीं है. तो महाभारत को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें इतना पैथोस है, उसमें इतनी ट्रेजेडी है, इतना सब कुछ है, पर उससे हमें सबसे बड़ी जो एजुकेशन भी मिली है वो गीता के रूप में मिली है. और गीता उपनिषद का सार है, मतलब दैट इज द ट्रू टीचिंग. अगर हम उसको बचपन से पढ़ना शुरू कर दें तो शायद हमारा देश जो हो वो प्रीमियर कंट्री हो पूरी दुनिया में. तो दोनों अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है. दोनों की बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत सुंदर कहानियां हैं. आप जरूर पढ़ें. आप पढ़ेंगे तो आपको कोई हैरी पॉटर पसंद नहीं आएगा, पसंद आएगा, पर फिर भी हाँ, जैसे फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, फॉर यंग पीपल, there is both Ramayana and Mahabharata. You must read, and you'll find about both the characters. And now we come to the end of this little interaction that we all had. I hope we all enjoyed it as much as I did hosting it.
Thank you, Aparna ma'am. It's actually the first time that I am interacting with you on this platform, and I loved it. Thank you so I much. too- Thank you.